شادی سے فارغ ہوتے ہی میں نے گھر واپس جانے کا سوچا۔ آدھی رات کو میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور مجھے کسی بھی طرح جلد اپنے گھر پہنچنا تھا۔ اماں کے کافی روکنے پر بھی میں شادی والے گھر نہیں رکا۔ میں نے اماں سے یہی بہانہ لگایا کہ مجھے صبح آفس میں کام ہے، اس لیے میرا ابھی نکلنا بہت ضروری ہے، نہیں تو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اماں سے یہ کہتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں پھپھو کے گھر سے نکل آیا۔ اب میں ذہنی سکون میں تھا۔ میں سکون سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سفر کو انجوائے کرتے جا رہا تھا کہ اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں شارٹ کٹ راستہ استعمال کر کے جلدی سے گھر پہنچ جاؤں، تاکہ جلدی سے گھر پہنچ کر کچھ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکوں۔ یہی سوچ کر میں نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ پہلے تو میں اس راستے پر بہت مطمئن ہو کر گاڑی چلا رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی اس راستے پر جنگل سے گزرنا شروع ہوا تو مجھے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا جو اپنی کہانی اپنے سناٹے کے ساتھ خود بیان کر رہا تھا۔ سڑک بہت سنسان تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا تھا۔ دور دور تک میری گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی اس راستے میں جاتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گاڑی واپس موڑ لوں، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں بہت زیادہ راستہ طے کر کے یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ پریشان سا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا مجھے اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے یا پھر واپس گاڑی موڑ لینی چاہیے۔ میں نے سفر کو جاری رکھنے میں ہی بہتری محسوس کی۔ میں مسلسل گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ جنگل کے درمیان میں جا کر اچانک سے میری گاڑی رکنے لگی۔ ایک دم سے گاڑی رکی اور دوبارہ چلنے لگتی، پھر گاڑی رکتی، پھر چلنے لگتی۔ ایسے ہی کچھ سفر طے ہوا کہ اچانک سے جھٹکا لگنے سے میری گاڑی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ جب میں نے گاڑی سے باہر نظر ڈالی تو ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو باہر سے خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہ چمگادڑ کی لگ رہی تھی۔ گھنا جنگل تھا، دور دور تک مدد کے لیے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا اندر سے بہت دھواں نکل رہا تھا۔ گاڑی کا انجن بے حد گرم ہو چکا تھا۔ انجن کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن مجھے دور تک کہیں بھی پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور جنگل کے بیچوں بیچ چلتا ہوا پانی کی تلاش میں آگے نکل گیا۔ جنگل کا سما بے حد خوفناک تھا۔ اچانک سے تیز آندھی چلنے لگی اور خوفناک سی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا مگر اپنے قدموں کو چلتا رہنے دیا۔ بہت آگے تک آنے کے بعد بھی جب مجھے دور دور تک کہیں بھی کوئی پانی نہ دکھا تو میں بہت پریشان ہو کر واپس گاڑی کی طرف آ گیا۔ اب میں سڑک پر ہی کسی کی مدد کا انتظار کرنے لگا، لیکن دور تک مجھے کہیں سے بھی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کاش میں نے اماں کی بات مان لی ہوتی تو اب میں اس قسم کی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا، مگر میں کیا کرتا؟ میرا 1% بھی دل نہیں تھا کہ میں پھپھو کے گھر میں کچھ دیر اور رکوں۔ مجھے ان کے کیے گئے سلوک بار بار یاد آنے لگے۔ اب چاہے جو بھی تھا، پھنس تو میں ایک مشکل میں گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید کوئی اور گاڑی اس راستے سے گزرے تو میں اسے لفٹ لے کر اپنے گھر تک چلا جاؤں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اس سنسان راستے پر دن کے وقت بھی لوگ اتنے گھبراتے ہوں گے کہ یہ تو پھر گہری رات کا وقت تھا۔ اس وقت اس سنسان راستے پر مجھے کسی کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، اسی لیے میں نے رات گاڑی میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گاڑی کے شیشے اچھی طرح سے بند کر دیے اور دروازے اچھی طرح سے لاک کر لیے تھے۔ میرا دل تھوڑا گھبرا رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا
कि क्यों ना मैं अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ बुला लूँ और अपने घर चला जाऊँ। गाड़ी को सुबह किसी मैकेनिक को लेने के लिए भेज दूँगा। जैसे ही मैंने दोस्त को कॉल करने के लिए मोबाइल जेब से निकाला तो मोबाइल के सिग्नल गायब थे। मैं ये देखकर बेहद हैरान हुआ। मैंने मोबाइल को ज़ोर से अपने हाथ से मारा तो ये देखने के लिए कि शायद सिम ना हिल गई हो, लेकिन फिर भी मोबाइल पर सिग्नल नहीं आए। मैंने सिम निकालकर दोबारा से मोबाइल में डाली, तब भी सिग्नल गायब थे। अब मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि इस जगह सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि समझ से बाहर था कि ये कौन सी जगह है जहाँ मोबाइल के सिग्नल ही गायब हो गए। अब तो मैं किसी को फ़ोन करके भी मदद के लिए नहीं बुला सकता, इसलिए चुपचाप हौसला करके मैंने सोना ही बेहतर समझा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरी आंख लगी। मुझे अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपनी बंद आंखें खोली तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक लड़की को सुनसान सड़क पर जाते हुए देखा। उस लड़की ने अपना लहंगा पहना हुआ था और हाथ में पानी का घड़ा पकड़ा हुआ था जिसमें से पानी छलक कर बाहर गिर रहा था। मुझे कुछ न सूझा। पानी देखकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई। मुझे प्यास भी शिद्दत की लगी हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे आवाज़ देने लगा, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा ठहरो मैडम। मैं यही सदा लगाते हुए उसके पीछे तेज़ तेज़ कदम चलने लगा। अभी मैं कुछ दूर ही उसका पीछा करते पहुंचा था कि अचानक से मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और मैं बहुत ज़ोर से नीचे गिरा। मैं खुद को संभालता हुआ खड़ा हुआ और जैसे ही सामने देखा तो वो लड़की गायब थी। वो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैंने कुछ देर उसको इधर उधर तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं मायूस होकर दोबारा अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि इतने सुनसान रास्ते पर वो लड़की कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, और उसने मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी। मैं यही सोचे जा रहा था कि अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। दिन की रोशनी ने जैसे ही आसमान को अपने घेरे में लिया तो उस रोशनी से जल्द मेरी आंख खुल गई। मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगा लेकिन अभी भी सड़क पर कोई भी नहीं था। मैंने मोबाइल चेक किया, मोबाइल पर भी सिग्नल नहीं थे। बहरहाल मैंने इन बातों पर गौर नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ घर पहुंचना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब गाड़ी को सेल्फ मारकर देखता हूँ, शायद ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गर्म थी, शायद इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी को सेल्फ मारी तो फ़ौरन से स्टार्ट हो गई। मैंने जल्दी से गाड़ी चलाई और घर का रास्ता लिया। घर पहुँचते ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया। फ्रेश होने के बाद मैंने अपनी काम वाली से एक कप चाय का मांगा कि अचानक से जहन में एकदम से उसी लड़की का ख्याल आया। मैं दिल में सोचने लगा कि आखिरकार वो लड़की रात के उस पहर में उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी, वो कहाँ से आई थी और एकदम आंखों से कैसे ओझल हो गई। यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि मैंने चाय पीते ही जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी सुनसान सड़क की तरफ जाने लगा। दिन की काफ़ी रोशनी थी। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो अपने इर्द गिर्द दूर तक हर जगह देखने लगा। दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे दिल में यही सवाल था कि जब यहाँ कोई घर ही मौजूद नहीं तो वो लड़की आखिर गई तो गई, कहाँ गई। खैर मैंने मायूस होकर दोबारा से अपने घर की राह ली। कुछ दिन इसी सोच में गुजर गए। मुझे न जाने क्यों उस लड़की की तरफ खींच सी लगने लगी। मेरा जी चाहता कि मैं पूरा जंगल छान मारूं और उस लड़की को ढूंढ कर ले आऊं, क्योंकि न जाने एक नज़र में ही वो लड़की मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छा गई थी। मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। कुछ दिन तक तो मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। इतने में मुझे अम्मा की कॉल आ गई और मुझे अम्मा ने कहा कि मुझे आज पुप्पो के घर से लेकर चलो। मुझे उस रास्ते पर जाने का फिर से बहाना मिल गया। मैंने फ़ौरन से पहले अम्मा को हाँ कर दी कि आज रात निकलूँगा और सुबह हम लोग वहाँ से निकल आएंगे। मेरे दिल में था कि उस गहरी रात में उस लड़की को तलाश करूँगा, शायद वो उसी गहरी रात में मिल जाए। मैंने हर चीज़ एहतियात के तौर पर गाड़ी में रख ली ताकि गाड़ी अगर ख़राब भी हो जाए
तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल सकूं। पानी का कैन, इसके अलावा खाने पीने का कुछ सामान मैंने गाड़ी में रख लिया। मैं गहरी रात में अम्मा को लेने के लिए निकल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने वही शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। अब मैं दोबारा सड़क पर नज़र दौड़ाते हुए जा रहा था, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। मेरी गाड़ी फिर उसी जगह अचानक से बंद हो गई। जैसे ही मैंने गाड़ी को दोबारा से सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मेरी नज़र सामने आती उस लड़की पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा तो ये वही लड़की थी। उसने फिर से वही लहंगा पहना था और हाथ में पानी का घड़ा था। जैसे ही मैंने उस लड़की पर गौर किया तो गाड़ी की लाइट्स ऑन की। उस लड़की ने रोशनी की वजह से अपने मुंह के आगे हाथ कर लिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और उससे कहने लगा, कौन हो तुम और इस सुनसान सड़क पर इस वक्त क्या कर रही हो? उसने बड़े ही नाजुक अंदाज में अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, मैं अक्सर इस वक्त पानी भरने जाती हूँ। मैं उसे देख कर हैरान रह गया। वो इस कदर खूबसूरत थी कि मेरी निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम जानती हो कि ये रात का वक्त है और सड़क कितनी सुनसान है। वो लड़की मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगी कि मेरा तो काम ही रात का है। सारा दिन पानी भरने के लिए मैं घर से नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है मैं पानी भरने की ड्यूटी निभाती हूँ। वो इतना कहकर आगे जाने लगी। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुने बगैर ही चलती रही। वो लड़की इस कदर खूबसूरत थी, ऐसा लगता कि मैं पहली नज़र में ही अपना सब कुछ उस पर हार बैठा हूँ। वो मेरी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रही थी। मैं उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा कि अचानक से मोबाइल की बेल हुई। जैसे ही मोबाइल निकाल कर मैंने देखा तो अम्मा का फ़ोन था। मैंने फ़ोन अटेंड किया। कब तक पहुँचोगे? अम्मा मुझसे पूछ रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि बस कुछ ही देर में आपके पास हूँगा। मैंने अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया और कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मैं फुप्पो के घर पहुँच गया। अम्मा भी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने घर की बेल दी तो अंदर से अम्मा की आवाज़ आई। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मेरा माथा चूमते हुए कहने लगी, अमीर हमज़ा, ये कौन सा तरीका है आधी रात को सफ़र करने का? तुम या तो सुबह आते या फिर आज दिन में आ जाते। मेरी तो जान पर बनी हुई थी। तुम्हें पता भी है कि मुझे रात के सफ़र से खौफ आता है। अम्मा, आप ये सब बातें मुझे दरवाजे पर ही कहती रहेंगी या मुझे अंदर भी आने का कहेंगी? मैंने अम्मा से थकी हुई आवाज़ में कहा था। अम्मा ने जल्दी से मुझे अंदर आने दिया। पुप्पो भी जाग गई थी। पुप्पो ने जब मुझे अंदर आते देखा तो उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अमीर हमज़ा, बड़ी देर लगा दी पहुँचने में। मैंने पुप्पो से कहा, निकला ही देर से था, और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। पुप्पो की सबसे छोटी बेटी हानिया भी जाग रही थी। हानिया ने मुझे सलाम किया और साथ ही मुझे कहने लगी, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। मैंने हानिया को पहली दफ़ा देखा था। हानिया मेरी हम उम्र थी। हानिया अखलाक की बेहद अच्छी थी। मैं फ़्रेश होने के लिए चला गया। इतने में हानिया ने खाना गर्म करके लाया। अम्मा और मैं एक ही टेबल पर बैठ गए। अम्मा ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि अम्मा मेरे पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था। मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों के सामने वही खूबसूरत लड़की बार बार आने लगी। मैं उसके बारे में सोचता हुआ ना जाने कब सो गया। सुबह होते ही अम्मा ने मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठा और घर जाने के लिए तैयार होने लगा क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी और मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना था। मैंने अम्मा से कहा, 2 घंटों का ही तो सफ़र है, मैं नाश्ता घर पहुँच कर ही करूँगा। आप जल्दी से जो भी नाश्ता बना है कर लें, तब तक मैं गाड़ी में फ्यूल भरवा कर आता हूँ। फ्यूल तो एक बहाना था, मुझे तो उस लड़की को देखने जाना था। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी सुनसान सड़क पर चला गया। अभी मैं कुछ ही दूर पहुंचा था कि मुझे लड़कियों का एक झुंड दिखाई दिया जो कि अपने सरों पर सामान लादे उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ से उस लड़की को मैंने जाते देखा था। मैं भी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और झुंड की तरफ जाने लगा।
अभी मैं जुंड से थोड़ी दूर ही था कि मोबाइल पर किसी की कॉल आई। मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल पर ऑफिस से फ़ोन आ रहा था। फ़ोन मेरी पीए का था जो मुझसे पूछ रही थी कि सर आप कब तक मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचेंगे। मैंने उसे टाइम देखते हुए बताया कि कुछ ही देर में ऑफिस में होऊंगा। इतने में लड़कियों का झुंड काफ़ी आगे निकल चुका था। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा कि अचानक से उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिलाने लगी। ये वही लड़की थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। इससे पहले कि उसका पीछा करता एक और कॉल मेरे मोबाइल पर आने लगी। ये कॉल अम्मा की थी। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ जाने लगा। अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी मीटिंग भी है और तुम पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए हो। मैंने अम्मा की बातों पर ज़्यादा गौर ना करते हुए अम्मा को गाड़ी में बिठाया। पुप्पो लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहा और घर के लिए रवाना हो गया। हमें सीधे सीधे रास्ते घर के लिए निकला था कि कुछ ही देर की मुसाफत तय करते हुए मैं घर पहुंचा। अम्मा को घर उतारा और सीधा ऑफिस चला गया। कहने को तो मैं ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने गया था, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं था। मेरे ख्यालों पर तो वो लड़की बुरी तरह से छाई थी। मैं अपने दिल के हाथों बेहद मजबूर था। मीटिंग ख़त्म होते ही मेरा जी चाहा कि दोबारा उस जगह पर जाऊं और उससे मिलकर उस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करूं, लेकिन वक्त बहुत हो चुका था। अब अगर मैं घर से निकलता तो अम्मा बेहद परेशान होती। इसलिए मैंने सोचा कि अब कुछ दिन इंतज़ार कर लूं, उसके बाद फुप्पो की तरफ चक्कर लगाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। पूरा एक हफ्ता इंतज़ार करने के बाद मैंने खुद ही फुप्पो को कॉल की, हाल अहवाल पूछा। फुप्पो हैरान थी कि आज मैंने कैसे राब्ता कर लिया। मैं घर गया तो मैंने अम्मा से जिक्र किया कि मैंने फुप्पो को कॉल की थी हालचाल पूछने के लिए, तो अम्मा बेहद हैरान हुई। मुझसे कहने लगी कि खैर है, तुम तो कभी भी ऐसा नहीं करते। मैं मुस्कुराया और अम्मा से कहने लगा जो उन्होंने मेरे साथ बचपन में किया वो उनका फेल था, लेकिन अब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ। मेरा अपना एक मुकाम, एक स्टैंडर्ड है। आज हर कोई चाहता है कि अमीर हमज़ा उसे टाइम दे, लेकिन आज अमीर हमज़ा के पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैं फिर उन लोगों से मिलने से थोड़ा हिचकिचाता हूँ। अम्मा ने मुझे अपने साथ लगाया और मुझे कहने लगी, परेशान मत हुआ करो। जो वक्त गुजर गया उसे बंद मुट्ठी में मत रखो। अगर मुट्ठी बंद रखोगे तो तुम दुनिया से नजरें नहीं मिला सकोगे, और अगर मुट्ठी खोल लोगे तो तुम्हारे लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं कुछ देर के लिए फुप्पो की तरफ जाऊंगा। अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी। अम्मा को बताया कि मुझे वहाँ ऑफिस का कोई काम है। काम से फारिग होने के बाद मैं कुछ देर के लिए फुप्पो के घर रुकूंगा। अम्मा ये जानकर बहुत खुशी से कहने लगी कि अच्छी बात है, खूनी रिश्ते कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम मिलने लगो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं जल्दी से तैयार होकर फुप्पो के घर के लिए निकला। मैंने ये सोचा कि कुछ देर फुप्पो के घर बैठने के बाद जब अंधेरा छाने लगा तो मैं उसी सुनसान सड़क पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही वो लड़की आएगी उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा। कुछ ही देर में फुप्पो के घर पहुंच गया। फुप्पो ने मुझे बहुत प्यार किया और मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना तैयार करके रखा था। मैंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के लिए वापस निकला। फुप्पो ने मुझे काफ़ी रोका, इतनी रात को सफ़र ना करो, लेकिन मुझे तो लड़की से लाजमी मिलना था, इसीलिए मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। आज फिर ये सड़क अपनी कहानी आप बता रही थी। ये सड़क बेहद सुनसान थी और सन्नाटा चार सू छाया हुआ था। मैंने उसी जगह पर जाकर अपनी गाड़ी रोकी। हमें उस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब वो लड़की हाथ में गड़ा लिए छन छन करती उस रास्ते से गुजरेगी। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे वो दूर से लड़की आती दिखाई दी। इस दफ़ा वो बहुत घबराई हुई थी। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि जल्दी से गाड़ी चला लो, नहीं तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो ये लड़की दुल्हन के लिबास में थी। उसने आज जो लहंगा पहना था वो दुल्हन वाला था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से उस सुनसान रास्ते को तय करता हुआ जाने लगा।
जब मैं जीटी रोड पर पहुंचा तो मैंने गाड़ी रोकी और उससे कहा कि उतरकर अगली सीट पर आ जाए। वो बहुत घबराई हुई थी और खौफजदा थी। जल्दी से दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे जो नदी की तरह बह रहे थे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान मत हो, अब तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी हालत में क्यों हो और क्या हुआ है जो तुम इस कदर परेशान हो और रो रही हो। वो अपने आंसू साफ करते हुए मुझसे कहने लगी कि मेरा सौतेला बाप मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। अब मेरा कोई भी ठिकाना नहीं। खुदा के लिए तुम मुझे अपनी पनाह में ले लो। ये कहकर तो उसने मेरे दिल की बात कही थी, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि मैं उसे अपने निकाह में ले लूँ और उसको कभी खुद से दूर ना होने दूँ। लेकिन अम्मा का क्या रवैया होगा उसे देखकर। मैं सोचने लगा। मैंने पहले तो उसे तसल्ली देकर समझाया कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम अपने बाप को इनकार कर देती। उसने बताया कि उसका बाप सौतेला था। वो 50 साला बूढ़े के साथ मेरी शादी कर रहा था, क्योंकि मेरे बाप ने उससे पैसे लिए थे और वो मुझे बेच रहा था। उसने मुझे अपना नाम फातिमा बताया। मैंने फातिमा से कहा कि फिर तो अच्छा ही हुआ जो तुमने घर से भागने का फैसला किया। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब तुम मेरे साथ हो और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँच पाए। मैं शहर के अंदर इंटर हुआ तो सबसे पहले मैं कोई ऐसी शॉप ढूंढने लगा जहाँ से मुझे खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता, क्योंकि फातिमा भी भूख से निढाल लग रही थी। आधी रात का वक्त था। दूर दूर तक कहीं कोई दुकान भी खुली नज़र नहीं आ रही थी कि अचानक से मेरी नज़र एक ढाबे पर पड़ी जो कि तकरीबन बंद ही होने वाला था। मैंने जल्दी से गाड़ी का रुख उस ढाबे की तरफ किया और वहाँ से खाने पीने के लिए रोटी और सालन खरीदा। अब मैं फातिमा को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। घर पहुँचा। जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला तो सामने अम्मा खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी में से मैं नीचे उतरा। अम्मा ने मुझे प्यार किया और कहने लगी कि रात का सफ़र मत किया करो। कितनी दफ़ा समझाऊं तुम्हें, तुम मेरी इकलौती औलाद हो और रात के सफ़र मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें रात का सफ़र करने से क्यों रोकती हूँ। तभी अम्मा के मुंह में यही अल्फाज थे कि अम्मा की नज़र फातिमा पर पड़ी और अम्मा की आंखें पथरा सी गई थी, क्योंकि फातिमा दुल्हन के लिबास में थी। और इससे पहले कि मेरे और फातिमा के बारे में अम्मा कुछ गलत समझती, मैंने अम्मा को ये बात क्लियर करना मुनासिब समझी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, ये सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इसके साथ एक मसला हुआ है, ये मैं आपको अंदर चलकर बताता हूँ। अम्मा खामोशी से अंदर आ गई। फातिमा डरी और सहमी हुई थी। मैंने फातिमा से भी अंदर आने का कहा। मैं फातिमा को गेस्ट रूम में बिठा चुका था। अम्मा को कमरे में लेकर चला गया। मैंने अम्मा को फातिमा के बारे में सारी हकीकत बयान कर दी। अम्मा ये सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझसे कहने लगी कि ये यहाँ कैसे रहेगी, तुम जवान हो, कल को कोई पुलिस केस न बन जाए। मैंने अम्मा से कहा कि अब परेशान मत हो, जब कोई केस बनेगा तो मैं देख लूँगा। फ़िलहाल तो वो मजबूर है और आधी रात को मैं उसे उस वीरान रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। अम्मा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, सुनसान रास्ते पर जवान लड़की को छोड़ना बेवकूफ़ी थी। तुमने अच्छा किया इसे यहाँ पर लेकर आ गए। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद मैं अम्मा को कमरे से बाहर ले आया। फातिमा की नज़रें मुझे तलाश कर रही थी। जैसे ही मैं उसके सामने गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मा ने उसे प्यार किया और उसे कुछ कपड़े दिए कि वो कपड़े तब्दील कर ले और फ्रेश हो जाए। फातिमा ने कपड़े तब्दील किए और फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आ गई। मैंने और फातिमा ने खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया, जबकि फातिमा अम्मा के साथ अम्मा के कमरे में आराम करने चली गई। मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहा। ऐसा लग रहा था कि कुदरत को भी यही मंजूर था जो मैं चाहता था। अल्लाह ने मेरी चाहत इतनी आसानी से मेरी गोद में डाल दी थी। मैं बेहद खुश था। इसी खुशी में सुबह मेरी आंख जल्दी ना खुली तो एकदम से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो काम वाली दरवाजे पर खड़ी मुझे कह रही थी कि बड़ी बेगम आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं।
जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। मैंने टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मैं जल्दी से उठा, नहा धोकर कपड़े पहने और नीचे चला गया। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था कि एकदम से दिमाग में फ़ातिमा का ख्याल आया। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, फ़ातिमा कहाँ है? अम्मा ने बताया कि वो गहरी नींद सो रही है, शायद कल की थकावट नहीं उतरी उसकी। मैंने अम्मा से पूछा कि रात उसने ठीक से नींद ली थी? अम्मा ने बताया कि वो सारी रात रोती रही है। मैंने उसे बहुत समझाया तो फिर कहीं जाकर सोई। बहुत ही बुरा हुआ है फ़ातिमा के साथ, अम्मा मुझे कहने लगी। मैं और अम्मा नाश्ता कर ही रहे थे जब अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मैंने फ़ातिमा को खड़े देखा जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे से मेरी नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे उस पर बेहद प्यार भी आया। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि अम्मा ने भी उसे देखते ही कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी नज़र उतार लिया करो, कहीं तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र न लग जाए। फ़ातिमा मुस्कुराने लगी। अम्मा ने उसका बाजू पकड़कर उसे नाश्ते की टेबल पर बिठाते हुए कहा था, कैसी रही तुम्हारी रात? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? नींद तो अच्छे से ली है ना? मैंने फ़ातिमा को मुखातिब करते हुए फ़ातिमा से पूछा। फ़ातिमा ने मुझे बताया कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। अच्छे से नाश्ता करना और बेफिक्र रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं फ़ातिमा से ये सब कहते हुए अपने ऑफिस जा रहा था कि अचानक से मेरे कानों में अम्मा की आवाज़ पड़ी। अम्मा मुझे कह रही थी कि आज ज़रा जल्दी से घर वापस आ जाना और फ़ातिमा को मॉल पर ले जाना, जाकर थोड़ी कपड़ों की शॉपिंग करवा देना। कब तक वो ऐसे फिरती रहेगी? मैंने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा, ठीक है, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा, और अल्लाह हाफिज़ कहते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में आज बहुत काम था। मैं सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहा। मेरे दिल में जो बेचैनी थी फ़ातिमा से मिलने की थी, वो बेचैनी अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि फ़ातिमा मेरे ही घर में मेरे पास थी। ये सोचकर मुझे तसल्ली थी कि अब मैं चाहे लेट जाऊं या जल्दी जाऊं, कोई मसले वाली बात नहीं। अब मुझे अपने ऑफिस को भरपूर टाइम देना था। मैंने अपने ऑफिस की सारी भाग दौड़ अपने करीबी दोस्त के हाथ में दी थी, क्योंकि मैं फ़ातिमा के चक्कर में ऑफिस को सही से टाइम नहीं दे पा रहा था। आज मुझे ऑफिस में ही देर हो गई। मैं जैसे ही ऑफिस से निकला तो मैंने अम्मा को फ़ोन कर दिया कि आप फ़ातिमा से कहें कि वो रेडी रहे। जैसे ही आकर मैं गाड़ी का हॉर्न दूँ तो फ़ातिमा को बाहर भेजिएगा। अम्मा ने ऐसे ही किया। जैसे ही मैंने घर के बाहर जाकर गाड़ी का हॉर्न दिया, फ़ातिमा जल्दी से बाहर आई गई। मैंने फ़ातिमा को बिठाया और एक बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए ले गया। मैंने फ़ातिमा को उसकी मर्ज़ी की शॉपिंग करवाई। एक अच्छे होटल में हमने खाना खाया और वहाँ से घर चले आए। फ़ातिमा बेहद खुश थी, मुझे बार बार कह रही थी, आप बहुत अच्छे हैं, आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे ही बातें करते हम लोग घर पहुँच चुके थे। घर जाते ही मैं अपने कमरे में चला गया और अम्मा से कहा कि एक कप चाय का मुझे मेरे कमरे में ही भेज दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और परेशान भी था, इसलिए कि ऑफिस में बहुत से काम ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो चुके थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये काम किसके हैं, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त तो ऐसी कोई हरकत कर नहीं सकता जिससे ऑफिस का 1 रुपये का भी नुकसान पहुँचे। बस इसी सोच ने मेरे सर में दर्द कर रखा था। मैं अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटा हुआ ये सोच रहा था कि आखिर मेरी कंपनी को इतना नुकसान कैसे हो गया, इसके पीछे किसका हाथ है। कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने अंदर आने की उसे इजाज़त दी तो सामने फ़ातिमा चाय की ट्रे पकड़े खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया और उससे कहा कि आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आई तो उसके साथ ही बहुत तेज़ खुशबू मेरे चारों तरफ कमरे में फैल गई। फ़ातिमा और मैं बैठकर चाय पीने लगे। मैंने फ़ातिमा से अम्मा के बारे में पूछा कि अम्मा कहाँ पर हैं। फ़ातिमा ने बताया कि वो फ़ोन पर आपकी फुप्पो से बात कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चाय आप तक पहुंचा दूं। ये एक अजीब ही किस्सा था। जब भी फ़ातिमा मेरे करीब आती तो उसके साथ ही बहुत तेज़ खुशबू मेरे चारों तरफ फैल जाती। ऐसा लगता जैसे इस खुशबू ने मुझे अपने घेरे में लिया हो। मेरे सर का दर्द ही ख़त्म हो गया। मैंने फ़ातिमा से पूछा कि फ़ातिमा, पता नहीं ये क्या माजरा है,
जब भी तुम मेरे पास आती हो मेरे सर का दर्द, मेरी थकावट सब कुछ दूर हो जाता है और एक तेज़ खुशबू मुझे अपने घेरे में ले लेती है। फातिमा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देख लें, ये मेरे पास एक जादू है जिसका असर आप पर होने लगा है। हम ऐसे ही बातें कह के लगाकर हंस रहे थे कि तभी अम्मा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि अमीर हमज़ा, तुम्हारी फुप्पो की कॉल थी। मैंने अम्मा से हैरान होते हुए पूछा कि खैरियत थी, फुप्पो ने कॉल की, क्यों की है? अम्मा ने बताया कि वो अपनी छोटी बेटी का रिश्ता देना चाह रही हैं। मैंने अम्मा से कहा कि आपने क्या जवाब दिया है? अम्मा खामोशी से मेरा मुंह तकने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैंने यही कहा है कि मैं अमीर हमज़ा से बात करके आपको बताऊंगी। अम्मा ने मुझे फ़ौरन से पहले ये बात बोली कि मेरी भी यही चाहत है कि मैं हानिया को अपने बहू बनाकर इस घर में लेकर आऊँ। मैंने अम्मा को साफ इनकार कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने उनको बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए अपने दिल को समझाया है, नहीं तो उन लोगों ने जैसे मेरे बाप के मरने के बाद आपके साथ और मेरे साथ सलूक किया था, उस सलूक की वजह से तो ये अपना ये हक भी खो बैठे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से सलाम दुआ भी कर लूँ। और आप रिश्ते की बात कर रही हैं, कभी भूल कर भी मत सोचिएगा कि मैं हानिया के साथ शादी करने के लिए रजामंद दूंगा। मैंने अम्मा को साफ साफ बता दिया कि मैं शादी करूँगा तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा, हानिया के साथ तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैं गुस्से में इतनी बात बोलकर घर से बाहर चला गया। अम्मा बहुत परेशान थी। अम्मा ने फातिमा को हौसला दिया और कहा, परेशान मत हो, आप अमीर हमज़ा को आराम से समझाएंगी तो वह शादी के लिए ज़रूर हाँ करेंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं अभी तक घर नहीं गया था कि अचानक से मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो फ़ोन घर से था। मैंने फ़ोन उठाया तो फातिमा मुझे कह रही थी कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं फ़ौरन से पहले घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि अम्मा का बीपी हाई था। मैंने अम्मा को मेडिसिन वगैरह देकर सुला दिया। अब मुझे परेशानी ये खाए जा रही थी कि अगर अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी हानिया से कर दी तो मैं कभी फातिमा को अपना नहीं पाऊँगा। इन सब बातों से पहले ज़रूरी था कि मैं अपनी मोहब्बत का इकरार फातिमा से करता और उसकी रजामंदी जान लेता। अम्मा को सुलाने के बाद मैं और फातिमा टीवी लॉन्च में आ गए। फातिमा कहने लगी, मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसे क्या मालूम था कि मेरा सर दर्द उसे अपने पास पाकर ही ख़त्म हो जाता है। फातिमा चाय लेकर आई। हम दोनों मिलकर चाय पी रहे थे। तभी मैंने फातिमा से इजहार मोहब्बत करने का सोचा। मैंने फातिमा से कहा कि मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं सुनाना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो देखते ही तुम पर अपना दिल हार बैठा था। मुझे पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत हो गई थी। यही वजह थी कि बार बार जानबूझकर उस रास्ते पर आ जाता ताकि तुम्हें देख सकूं और तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। मैंने दिन रात एक किए हैं तुम्हें पाने के लिए। फिर अचानक एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे तुमसे ऐसे मिलवाया। मैं बहुत खुश था, इसलिए नहीं कि तुम परेशान हालत में मेरे पास आई, बल्कि इसलिए खुश था कि मेरे दिल की मुराद अल्लाह ने पूरी कर दी थी। देखो फातिमा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें अपने निकाह में लेकर अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। फातिमा मेरी सारी बातें खामोशी से सुनती जा रही थी और मुस्कुरा कर कहने लगी, अगर आपकी अम्मा ना मानी तो? मैंने फातिमा से कहा कि इस बात की टेंशन तुम मत लो, अम्मा भी मान जाएंगी, मुझे तुम्हारी मर्ज़ी जाननी है। फातिमा ने कहा, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं भी आपकी होकर रहना चाहती हूँ। अगर अम्मा का कोई एतराज़ नहीं तो आप जब चाहे मुझसे निकाह कर सकते हैं। मेरे दिल में एक सुकून की लहर सी दौड़ने लगी। मैं फातिमा का जवाब पाकर बेहद खुश था। अब मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह हुई। अम्मा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। मैंने अम्मा को अपने पास बिठाया और अम्मा से कहा कि क्या आपकी यही ख्वाहिश है कि हानिया ही आपके घर की बहू बनकर आए? अम्मा मेरा मुंह देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि नहीं, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जहाँ मेरा बेटा खुश हो वहीं पर खुशी खुशी उसका घर बसा दूँ।
اماں کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کو ٹھنڈک سی پہنچی۔ میں نے اماں کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ اماں، اگر آپ میری رضامندی چاہتی ہیں تو مجھے فاطمہ پہلے دن سے ہی بہت پسند تھی۔ فاطمہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے میں بار بار پھپھو کے گھر آتا جاتا تھا، کیونکہ فاطمہ اسی ایریے کی رہنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھپھو کے گھر کے چکر لگائے۔ اماں میری بات سن کر حیران رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے تو مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اسی لیے آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ میں پہلے خود جاننا چاہتا تھا کہ فاطمہ کی رضامندی کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کا سوتیلا باپ ہے اور اس کے ساتھ یہ سب سلوک کر رہا ہے۔ اماں نے فاطمہ سے فاطمہ کی رضامندی پوچھی تو فاطمہ نے بھی رضامندی دے دی۔ اماں نے خوشی خوشی میری اور فاطمہ کی شادی کا اعلان پورے خاندان میں کر دیا۔ اب سب کو یہی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ امیر حمزہ کی شادی فاطمہ سے ہو رہی ہے۔ میں اور فاطمہ بے حد خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سے جایا گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب فاطمہ میری شریک حیات بن کر میرے گھر میں ہمیشہ کے لیے بغیر کسی نقصان پریشانی کے رہنے لگی۔ میں اور فاطمہ بے حد خوش تھے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ فاطمہ میں ایک عجیب سی کشش تھی، نہ جانے یہ کشش اس قدر مجھ پر حاوی کیوں تھی، کیونکہ فاطمہ جب بھی میرے قریب آتی وہ میرا دل موہ لیتے اور میرے تمام دکھ ختم ہو جاتے۔ آفس کا بہت مسئلہ بنا ہوا تھا، میں اس کو لے کر بہت پریشان تھا اور اکثر میرے سر میں درد رہتا، لیکن فاطمہ کا میرے قریب آنا اس سر درد کی دوا بن گیا تھا۔ فاطمہ اکثر بیٹھی مجھ سے کہتی، امیر حمزہ، اگر میں نے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات چھپائی ہو اور آپ کو اچانک پتہ چلے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور میں فاطمہ سے ہمیشہ کہتا کہ اگر تمہیں مناسب نہیں لگا وہ بات مجھ سے شیئر کرنا تو تمہارا رائٹ ہے، جس دن تمہیں مناسب لگے گا مجھے بتا دو گی تو میں تب تمہارا اتنا ہی ساتھ دوں گا جتنا آج دے رہا ہوں۔ فاطمہ میری یہ بات سن کر بے حد خوش ہو جاتی اور مسکرانے لگتی۔ آج صبح جب میں آفس گیا تو آفس میں بہت ہنگامہ مچا تھا۔ میرے بہت زیادہ شیئرز ایسے تھے جن میں ایک بھاری نقصان ہونے جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جیسے ہی میں نے تمام معاملے کی چھان بین کی تو میرا دوست ہی میرا قاتل نکلا۔ میرا جگری دوست جس کے حوالے میں نے اپنا سارا کاروبار کیا ہوا تھا، اس بھروسے پر کہ وہ مجھے دغا نہیں دے گا، اسی نے مجھے پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ خرم نے آفس کی فائلز میں بہت جگہ ہیرا پھیری کی تھی، جس کی وجہ سے میرا کام دن بدن پستی کی طرف جا رہا تھا۔ انویسٹیگیشن کرنے پر معلوم ہوا کہ خرم نے بہت سی جگہ پر گھپلا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری کمپنی کے شیئرز نیچے ہی گرتے جا رہے تھے۔ میں ساری معلومات لینے کے بعد بے حد پریشان ہوا۔ اماں سو رہی تھی۔ فاطمہ نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میں نے فاطمہ سے سارا دل کا حال بیان کیا۔ فاطمہ غور سے میری بات سنتی جا رہی تھی، پھر اچانک سے مجھے کہنے لگی، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ میں حیران ہو کر فاطمہ کا منہ دیکھنے لگا کہ تمہیں اتنا بڑا مسئلہ ایک معمولی سی بات لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے کہا، آپ پریشان مت ہو، آپ کچھ دن کے لیے اپنے آفس کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دیں، پھر دیکھیں کیسا جادو ہوتا ہے اور آپ کا سارا ڈوبا ہوا کاروبار دوبارہ سے کیسے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ پہلے تو مجھے فاطمہ کی کسی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ دن کے لیے فاطمہ کو آفس کا کام تھما دیا۔ اب فاطمہ ڈیلی گھر کے کاموں کے ساتھ آفس کے کام کو بھی دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جو میرا کاروبار پستی پر آن پہنچا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ میں اور اماں یہ دیکھ کر بے حد حیران تھے اور خوش تو بے حد تھے۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ میں یہ تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا، تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ فاطمہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ایک راز ہے، اگر میں نے یہ راز آپ پر ظاہر کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بے حد پریشان ہوا اور حیران ہو کر فاطمہ کا منہ تکنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے جس سے فاطمہ کو یہ اندیشہ تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس وقت تو میں مذاق میں اس بات کو ٹالتے ہوئے چپ ہو گیا، لیکن یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ میرے دل میں اس بات نے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں اب رات ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ رات ہو اور جب فاطمہ میرے کمرے میں آئے گی
تب میں اسے اس بات کا جواب لوں گا۔ رات ہو گئی اور فاطمہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آئی تو میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فاطمہ سے کہا کہ کچھ تو ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ تم نے اماں کے سامنے بھی یہ بات بولی تھی کہ یہ ایک راز ہے، اگر یہ ظاہر ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایسا کون سا راز ہے جس نے تمہیں اتنی بڑی بات بولنے پر مجبور کر دیا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ فاطمہ میری طرف دیکھنے لگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، امیر حمزہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ میں اپنے گھر سے بھاگی تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ میرا باپ میری شادی ایک بوڑھے سے کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے حیران ہو گیا۔ فاطمہ نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں وہ سارا سچ آپ سے بیان کروں گی جو آج تک آپ سے چھپا رکھا تھا۔ فاطمہ نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ جیسے ہی فاطمہ نے میرے سامنے جن زادی کا نام لیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور فاطمہ سے کہنے لگا، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل پسند نہیں۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی میں ایک جن زادی ہوں اور میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آپ کے پاس بھاگ آئی تھی کیونکہ میرے قبیلے میں آزادی سے سانس لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آپ کو اپنانا بہتر سمجھا۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بہت سی طاقت ایسی ہے جس کے استعمال سے میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، لیکن میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نے اپنی جناتی طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ صرف آج آپ کا ڈوبتا کاروبار دیکھ کر میں نے اپنی جناتی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ میں فاطمہ کی باتیں سن رہا تھا اور ایک دفعہ تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں تو خود اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ ایک اچھی جنزادی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی زندگی میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھے اپنے جناتی روپ میں نہیں آؤ گی اور مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھ سے وعدہ کیا اور میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے فاطمہ کو چپ کروا دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ ہم اب اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم صرف اپنے فیوچر کے بارے میں پلان کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں وہ خوش نصیب ہوں جو آج تک فاطمہ کا ساتھ پا کر جی رہا ہوں۔ میں اور فاطمہ ایک بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے بھی نوازا۔ اماں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم ایک بہت خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔